السلام علیکم جی۔ آج جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2006۔ یہ ایک کرمنل سروس ہے تو اس کے متعلق بات کریں گے کہ اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اس میں کون کون سے لوگ ہیں، یہ جو ڈپارٹمنٹ اس میں کون سا ڈپارٹمنٹ آتا ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ لوگوں کی مدد کیسے کرتا ہے۔ پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی جو کرمنل کیسز ہوتے تھے اس کی پروسیکیوشن ہوتی تھی عدالتوں میں۔ تو اس سے پہلے جو ہے پہلے جو پولیس نے خود ہی پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے کیسز کی پروسیکیوشن کرتا تھا، اس میں اے ایس اے پروسیکیوشن ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہ سیٹ اپ ڈیٹ ہو کے ایس آئی ہو گئی، پھر لیگل انسپیکٹر آ گئے ان کے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد دیر تک یہ جو پروسیکیوشن ہے کیسز کی، کرمنل کیسز کی، یہ اٹارنی ڈپارٹمنٹ بھی کرتا رہا۔ لا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ایک اٹارنی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کرتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ 2006 میں ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اس ایکٹ کے تحت، اور اب یہ جو ہے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں وہ اب اس ایکٹ کے تحت جو ہے عدالتوں میں جو ہے پروسیکیوٹر ان کو پروسیڈ کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ون بائی ون اس کو دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹ میں کیا چیزیں ہیں اور یہ کیسے جو ہے وہ یہ رن کرتا ہے پروسیکیوٹر ورک کو۔ تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ اس کا ہے شارٹ ٹائٹل ہے، ڈیفینیشنز ہے۔ اس چیپٹر 2 جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف سروس پہ ہے، کانسٹیٹیوشن پہ ہے، ایڈمنسٹریشن پہ ہے، پروسیکیوٹر جنرل ہے، کوالیفیکیشنز ہیں اور اپوائنٹمنٹس ہیں۔ اسی طرح جو اس کا چیپٹر 3 ہے وہ کنڈکٹ آف پروسیکیوشن ہے، پاورز آف پروسیکیوٹرز ہے، کنڈکٹ آف پروسیکیوشن بیفور سپیریئر کورٹس ہے، رسپانسبلٹیز آف پولیس ٹوورڈز پروسیکیوٹرز ہے، ڈیوٹیز آف پروسیکیوٹرز ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو چیپٹر 4 ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف ایجنسیز کے متعلق بات کرتا ہے۔ چیپٹر 5 جو ہے یہ مسلینیس ہے، اس میں پاورز ٹو میک رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، انڈیمنٹی ہے، ریموور آف ڈیفیکلٹیز ہے، ایکٹ اوور رائڈ ادر لاز ہے، اینڈ سیونگز ہے۔ تو اب جی چیپٹر 1 ہے، اس میں سیکشن 1 ہے۔ تو یہ کہتا ہے دس ایکٹ میں بھی کارڈ دی پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس کانسٹیٹیوشن فنکشنز اینڈ پاورز ایکٹ 2006 اٹ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پنجاب اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس۔ تو یہ پورے پنجاب میں لاگو ہے، اور آگے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو اس میں جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں ان کا کیا کیا میننگ ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان دس ایکٹ unless subject or contest otherwise requires ایکٹ مینس دی پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2006۔ کوڈ کی بات کریں تو کوڈ مینس دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ 1898۔ ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ مینس اے ڈسٹرکٹ ایز ڈیفائنڈ ان پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ means an information recorded under section 154 of the code۔ اب کوڈ کا اوپر انہوں نے بتایا کہ جو سی آر پی سی ہے۔ گورنمنٹ مینس دی گورنمنٹ آف پنجاب، ہائی کورٹ مینس دی ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ۔ انویسٹیگیشن آفیسر means an officer of law enforcement agency competent under any law for the time being in force to investigate an offence۔ Law enforcement agency includes the Punjab Police and any other agency established under any law as may be notified by the government। Order means the police order 2002। Prescribe means prescribed by rules and regulations made under this act۔ Prosecution means prosecution of a criminal case। Prosecutor means Prosecutor General, Additional Prosecutor General, Deputy Prosecutor General, Deputy District Public Prosecutor General, Deputy District Public Prosecutor, Deputy District Public Prosecutor, Assistant District Public Prosecutor, and a Public Prosecutor under this Act shall be deemed to be the Public Prosecutor under the Court۔ اب یہ جتنے بھی ہیں یہ پروسیکیوٹرز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ اس طرح یہ آگے پروسیکیوٹر جنرل مینس دی پروسیکیوٹر جنرل اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 6۔ تو سیکشن آگے جا کے دیکھتے ہیں سیکشن 6 میں کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں۔
रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में अब रेगुलेशन इस एक्ट को चलाने के लिए रेगुलाइज करने के लिए होंगे तो वो हैं ये। रूल्स मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, हर एक्ट को चलाने के लिए कुछ रूल होते हैं तो ये उन रूल की बात कर रहा है। सर्विस मीन्स द पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस, और सुप्रीम कोर्ट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। The words and expression used herein but not defined shall have the same meaning as are assigned to them in the court or other। तो इसका मतलब ये है कि जो कहीं और नहीं हुए वर्ड, इनका मीनिंग अगर कहीं और नहीं इस्तेमाल हुआ तो वो जिस सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं उसी सेंस में ही समझा जाएगा। जी ये इसका अब सेक्शन 3 है, चैप्टर 2 है एस्टेब्लिशमेंट, क्या कैसे होगी इसकी ना प्रोसिक्यूशन की। तो दी गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ सर्विस टू बी कॉल्ड पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या क्या आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, द सर्विस शैल कंसिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, district public prosecutors, deputy district public prosecutors and assistant district public prosecutors। तो ये जो हैं ये जितने भी हैं एपी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं, पीजी हैं, डीपीजी साहब हैं, डीपीपी साहब हैं, डीडीपीपी हैं, एडीपीपी हैं, ये इस सर्विस का हिस्सा होंगे। अब सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि वो कौन करेगा। The government shall exercise superintendence over the service to achieve the objective of this act. The administration of the service shall, in the prescribed manner, vest in the Prosecutor General. A public prosecutor, an additional prosecutor general, and a deputy prosecutor general shall perform function under direction of Prosecutor General। ये जो एपीजी साहिबान हैं, डीपीजी हैं, ये जो है ये जो अपनी जो ड्यूटी करेंगे वो अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल करेंगे। सब्जेक्ट टू जनरल डायरेक्शंस ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल और अदर प्रोसिक्यूटर विद इन अ डिस्ट्रिक्ट शैल परफॉर्म फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जो एडीपीपीज हैं, डीडीपीपीज हैं, वो डीपीपी के अंडर जो है उनके सुपरविजन में काम करेंगे, और एपीजी और डीपीजी जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के कंट्रोल में उसके सुपरविजन में जो है वो काम करेंगे। लेकिन जी ये है प्रोसिक्यूटर जनरल, जो उसका पीछे डेफिनेशन पढ़ रहे थे उन्होंने वहां पे लिखा था कि जो अपॉइंट होगी जिनकी सेक्शन 6 में, तो सेक्शन 6 में देखते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो उनको देखते हैं। तो द प्रोसिक्यूटर Journal shall be head of the service and shall be appointed by the government on such terms and conditions as the government may determine, provided that term and condition of service of Prosecutor General shall not be varied during the initial and extended term of his office। आगे दूसरा, the Prosecutor General shall hold office for a term of 3 years, but the government may, after evaluation of the performance of Prosecutor General in the prescribed manner, extend the term for a further period of 2 years। तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है गवर्नमेंट पहले 3 साल अपॉइंट करेगी, फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके 2 साल बढ़ा भी सकती है। नंबर 3 जो है वो मिट हो गया। नंबर 4 जो है, the prosecutor general may resign from his post during the tenure of his office by submitting his resignation in writing to the government। जो प्रोसिक्यूटर है वो अगर अपना सर्विस को छोड़ना चाह रहा है प्रोसिक्यूटर जनरल, तो अपना जो है रेजिग्नेशन जो है वो गवर्नमेंट को इन रिटन देगा। आगे सेक्शन 6 की है, द गवर्नमेंट में or reason to be recorded in writing and after providing him an opportunity of being heard, remove the prosecutor general prior to the completion of his tenure on the ground of misconduct and physical infirmity। अब पीछे तो वो रिजाइन दे सकता था, अब गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन होती है कि वो उसको रिमूव कर सके, लेकिन उससे पहले उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। और उसको किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, या तो फिजिकली इनफिट हो गया, अनफिट हो गया हो, या उसको ने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया हो। The Prosecutor General shall have a right of representation and audience on the behalf of the government in all courts including High Court, the Federal Sheriff Court and Supreme Court।
तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उसका राइट है कि वो इन जो अदालतों में है वो जो है राइट है कि वो रिप्रेजेंट करे और गवर्नमेंट के बहाफ पे केसेस को इन अदालतों में, हाई कोर्ट में, फेडरल स्टेट कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो उसके पास राइट है कि वो कर सकता है। The Prosecutor General may delegate any of his function to an additional Prosecutor General or Deputy Prosecutor General. तो जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं वो अपनी जो पावर है वो किसी भी एपीजी एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल और डीपीजी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल को असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है सेक्शन 6 है, ये क्वालिफिकेशन है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल। पीछे प्रोसिक्यूटर जनरल था कि वो कैसे वो आता है, उसका रिजाइन कैसे हो सकता है या उसको गवर्नमेंट कैसे रिमूवल कर सकती है, या वो अपने ड्यूटीज किसी को कहाँ कर सकता है और किसको असाइन कर सकता है। आगे क्वालिफिकेशन है उस प्रोसिक्यूटर जनरल की कि किस क्वालिफिकेशन का होगा बंदा, तो उसको प्रोसिक्यूटर लगाएंगे। A person shall not be appointed as a prosecutor general unless he is a citizen of Pakistan and is not less than 45 years of the age. तो पहले तो ये है कि वो एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा और उसकी जो एज है वो 45 ईयर से कम नहीं होगी। दूसरा जो है he has for a period of or for the periods aggregating not less than 10 years been an advocate of the high court। तो उसका जो पीरियड है वो कम से कम 10 साल उसका वो है एक्सपीरियंस हो एडवोकेट है हाई कोर्ट का। He is a law graduate and has for a period of not less than 17 years been a member of prescribed civil services। तो अगर तो वो किसी सिविल सर्विस में है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो 17 साल होना चाहिए। He has for a period of not less than 10 years held a judicial office in the Punjab। अगर वो किसी जुडिशियल ऑफिस में रहा है तो उसके लिए भी जो उसका जो मिनिमम जो है पीरियड है वो 10 साल है। He has for a period of not less than 5 years performed function of an additional prosecutor general। अगर वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है तो वो कम से कम 5 साल उसको एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की पोस्ट पे हो चुके हों। तो ये जो लोग हैं ये उनका क्राइटेरिया है जो एज प्रोसिक्यूटर जनरल लग सकते हैं। आगे ई है he has for a period of not less than 7 years performed the function of a district public prosecutor or has performed function of a prosecutor in the Punjab under any law for a period of not less than 15 years। आगे ये कहते हैं कि अगर तो वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो वो उसका अगर पीरियड 7 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी जो है प्रोसिक्यूटर जनरल लग सकता है। और अगर उसने किसी और कहीं भी कोई फंक्शन एज ए प्रोसिक्यूटर पंजाब में काम किया हुआ है एज ए प्रोसिक्यूटर तो उसके लिए जो है वो कम से कम जो हैं 15 साल हैं। तो जिसने कहीं भी 15 साल एज ए प्रोसिक्यूटर वर्क किया है पंजाब में तो वो जो है उसको भी प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया जा सकता है। जी, अब आगे जो सेक्शन 8 है अपॉइंटमेंट्स का है। The government may appoint additional prosecutor general and deputy prosecutor general to conduct criminal cases in the Supreme Court, the High Court, and the Federal State Court or any other special courts। तो any other special courts में आपकी दहशतगर्दी की अदालत है, एंटी करप्शन की अदालत है, ड्रग कोर्ट्स हैं, एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल है, लाइफ स्टॉक है। तो ये जो सारी हैं यहाँ पे भी जो है वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करेगा और गवर्नमेंट इसको वहाँ पे अपॉइंट कर सकती है। The government shall appoint a district public prosecutor in each district who shall be the official in charge of prosecution in district within the meanings of the code। तो जो गवर्नमेंट है वो हर जिले में एक जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। आगे जी है अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल अंडर सेक्शन 6 शैल बी आइदर बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय ट्रांसफर एज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे जी ये है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल के अलावा जिनकी जो हैं वो या तो उनकी इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी या प्रमोशन होगी या बाय ट्रांसफर होगी, जैसे रूल्स में कोई जो इस रोल होंगे उसके मुताबिक होगी। All appointments by initial recruitment shall be made on the recommendation of Punjab Public Service Commission। तो जो भी इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी जो ऊपर बताई गई है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी, उसके बाद जो है वो प्रमोशन हो सकती है या ट्रांसफर हो सकती है। चैप्टर 3 जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है प्रोसिक्यूशन एक्ट में।
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स, तो इसमें जो है देखेंगे कि जो प्रोसिक्यूटर्स की पावर क्या है और उन पावर को कैसे फंक्शनलाइज करता है अपने कंडक्ट के जरिए, अपने कंडक्ट के थ्रू। तो पहला देखते हैं इसमें सेक्शन 6(9) का 1। तो द प्रोसिक्यूटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब ये जितने भी क्रिमिनल केस हैं ये पंजाब में, इनको जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है वो कंडक्ट करेगा, उनकी जो उनको प्रोसीड करेगा, उनको प्रोसिक्यूट करेगा केसेस पर। आगे यदि प्रोसिक्यूटर जनरल एफ or if so authorized by him, any additional prosecutor general shall distribute work to the prosecutors in the Supreme Court, the High Court, the Federal Court, and a special court established under any law for the time being in force. तो जी आगे ये दूसरा सेक्शन है वो ये है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो है या वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या उसके बिहाफ पे कोई एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जिसको उसने पावर डेलीगेट की हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट वर्क करेगा। कहाँ पे? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल स्टेट कोर्ट में या किसी भी और अदालत में जहाँ पे क्रिमिनल वर्क हो रहा हो, चाहे वो किसी भी एक्ट के तहत बनी हुई हो। तीसरा है जी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द प्रोसिक्यूटर्स with respect to the courts of sessions and courts of magistrate within a district। तो तीसरा इसका सेक्शन 9(3) ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो पूरे जिले में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। अब यहाँ भी पावर डेलीगेट करने की कोई बात नहीं है, प्रोसिक्यूटर जनरल कर सकता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कर सकता। अब 9(4) जो है वो है ए पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड। अब कोड वहां पे हमने पीछे पढ़ा तो वो CRPC था, criminal procedure code, including a report of cancellation of the first information report or a request for discharge of a suspect or an accused shall be submitted to a court through the prosecutor appointed under this act। अब जी वो इस सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि जब भी कोई पुलिस रिपोर्ट, अगर चाहे वो 173 की रिपोर्ट लेके आ रही है जिसको हम उर्फ आम में चालान कहते हैं, या वो कोई कैंसलेशन रिपोर्ट लेके आ रही है कि कोई FIR कैंसिल कर दी है इस पुलिस ने इस वजह से कि ये वकूआ नहीं हुआ या ये वकूआ जो है वो झूठा था या ये वकूआ जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ, या कोई डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट है ऐसे बंदे की जो बेगुनाह हो, तो पुलिस जो रिक्वेस्ट बना के लाएगी रिमांड स्टेज पे कि जिसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, या कोई ऐसा अक्यूज जिसको सबमिट करना हो कोर्ट में तो वो जो है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किया गया हो, ये सारी चीजें उसके जरिए होंगी। अच्छा जी, आगे जो 9(5) है, 9(5) ये कहता है द प्रोसिक्यूटर शैल स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट और द रिक्वेस्ट एंड मे। अब ये जो ऊपर उसके सेक्शन 9(4) में आया है कि जो प्रोसिक्यूटर है उसके जरिए जो है वो जाएगा, रिपोर्ट जाएगी। अब वो रिपोर्ट को भेजने से पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट को, रिपोर्ट को या कैंसलेशन रिपोर्ट को क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा। तो स्क्रूटनाइज करके करेगा और उसके पास जो पावर्स हैं, जो उसका फंक्शन है, रिटर्न द सेम विद इन 3 days टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एज द केस में बी। वो जी if he finds the same to be defective for removal of such defects as may be identified by him। जो प्रोसिक्यूटर है अगर वो देखता है कि इसमें ये एविडेंस मजीद आनी चाहिए, ये डिफेक्ट्स हैं इस केस में एविडेंस के हवाले से, तो वो उसको जो है वो विद इन 3 days जो है वो SHO को या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको वापस भेज देगा कि इसको जनाब आप जो मैंने डिफेक्ट उठाए हैं, ये ऑब्जेक्शन उठाए हैं, इनको रिमूव करके लाएं। आगे जी इसका B है इफ इट इज फिट फॉर सबमिशन फाइल इट बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। अगर प्रोसिक्यूटर एक जो 173 की रिपोर्ट या कैंसलेशन रिपोर्ट या रिक्वेस्ट आ रही है, वो देखता है कि ये कोर्ट में भेजने के काबिल है, ये इस पे प्रोसीडिंग हो सकती हैं, इस पे मुलज़म को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, वो जो केस है वो जो मुतलका कोर्ट होगी, जिसकी जुरिसडिक्शन होगी, उसमें वो जो केस है वो उसको भेज देगा। सेक्शन 9(6) में जो है अगर कोई ऑन द रिसीप्ट ऑफ एन इंटरिम पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड द प्रोसिक्यूटर शैल examine the reason assigned for delay in the completion of investigation and if he considers the reasons compelling
request the court for the postponement of trial, and in case of investigation is not completed within reasonable time, request the court for commencement of trial. तो इसमें ये है कि अगर जो इंटरनल रिपोर्ट आती है उसमें जो रीजंस हैं उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दी हैं वो रीजनेबल है कि नहीं, अभी जो है ट्रायल पोस्टपोन किया जा सकता है, तो जो प्रोसिक्यूटर है वो कोर्ट को कह सकता है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। और अगर इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट रीजनेबल टाइम में नहीं हो रही, कोर्ट को ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो उसका ट्रायल जो है वो कमेंस किया जाए। बी में ये है, इन केस पे रीजंस असाइन फॉर डिले इन द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नॉट कंपेलिंग। तो अब अगर ऊपर कंपेलिंग उसको इन्वेस्टिगेशन की डिले की जो है रीजन है वो कंपेलिंग है, तो वो पोस्टपोन की रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर कंपेलिंग नहीं है तो प्रोसिक्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। प्रोसिक्यूटर कह सकता है कि ये जो आपके पास रिपोर्ट हमने भेजी इस पे जो अवेलेबल एविडेंस इसको आप जो है वो इस पे जो ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9 बहुत अहमियत का हामिल है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर इस पे डिस्कशन भी करते हैं। द प्रोसिक्यूटर शैल सबमिट in writing to the magistrate or the court the result of his assessment as the available evidence and applicability of offences against all or any of the accused as per facts and circumstances of the case, and the magistrate or the court shall give due consideration to such submission। जी सेक्शन 9 में जो है वो सेक्शन 9 जो है 97 जो है प्रोसिक्यूशन एक्ट का, वो ये कहता है कि जो प्रोसिक्यूटर है वो राइटिंग में मजिस्ट्रेट को या कोई भी जो दूसरी कोर्ट है वो एक असेसमेंट अपने बताएगा। असेसमेंट क्या बताएगा? असेसमेंट में क्या बताएगा? वो बताएगा कि इसमें अवेलेबल एविडेंस क्या है और इस पे कौन कौन से ऑफेंस लग सकते हैं, और इन ऑफेंसेस में ये जो एविडेंस अवेलेबल है ये सफिशिएंट है सजा के लिए। और जो ऑफेंसेस हैं वो सारे मुलजिमों के खिलाफ भी बताएगा, या अगर एक है तो एक के खिलाफ भी बताएगा कि इस मुलजिम के खिलाफ ये ऑफेंस बनता है, इस मुलजिम के जो अगेंस्ट है वो ये ऑफेंस बनता है। और उससे पहले वो जो है वो फैक्ट्स देखेगा, सर्कमस्टांसेस देख के जो है वो हर मुलजिम के खिलाफ जो अवेलेबल एविडेंस है और उसकी जो अप्लीकेबिलिटी ऑफेंसेस की है हर मुलजिम के खिलाफ, वो जो है अपने असेसमेंट फॉर्म में बताएगा कि ये इस मुलजिम के खिलाफ ये एविडेंस है, इन हालात में इसके खिलाफ ये एविडेंस जो है वो सफिशिएंट है इसको सजा देने के लिए। और फिर इसमें जो है ये भी एक्ट में है कि जो कोर्ट है वो जो प्रोसिक्यूटर की जो असेसमेंट है उसको ड्यू कंसिडरेशन देगी, कि उसको देखेगी, समझेगी और उसको जो है वो वेटेज देगी। तो जो असेसमेंट है, आप असेसमेंट पे थोड़ी सी और बात कर रहे हैं, तो असेसमेंट कहाँ कहाँ पे और भी हो सकती है। तो प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत तो वो कहता है कि आप जब चालान भेज रहे हैं तो उस वक्त जो है वो असेसमेंट जो है वो हो सकती है। तो बात हो रही थी असेसमेंट पे, तो इसमें जो है वो जो डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दी हैं, इसमें ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जब भी एविडेंस में रद्द-बदल हो, या 265 के की एप्लीकेशन है या 249 ए की है, तो उस वक्त भी जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है वो अपनी असेसमेंट दोबारा कर सकता है और बता सकता है कोर्ट को कि सर इस वक्त जो है मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये केस जो है वो अब इसमें एविडेंस कम है, या इस मुलज़िम के खिलाफ ये अब केस नहीं बनता। तो वो जो कोई भी रद्द-बदल जब भी एविडेंस में आए, चाहे वो केस एंड पे हो या स्टार्ट पे हो, तो वो जो है अपने असेसमेंट जो है वहाँ पे दोबारा जो है वो कर सकता है। तो इसके हवाले से वो स्पेशली जब कोई विटनेस रिजाइल हो गया हो, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फैक्ट था जो पहले वो सपोर्ट कर रहा था उसके बाद वो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर 9C का केस है, उसमें वो पहले सपोर्ट कर रहा था, जब उसकी PFS की रिपोर्ट आई तो उसमें वो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया कि जी इसमें जो है वो जो आपने भिजवाया था एनालिसिस के लिए, तो वो जो है मंशियात नहीं निकली, वो कोई पाउडर सादा पाउडर निकला या वैसे कोई बेकिंग पाउडर निकला। तो उस वक्त भी जो है जब वो रिपोर्ट उसके सामने आती है प्रोसिक्यूटर के, तो वो अपनी जो असेसमेंट है वो दोबारा कर सकता है उस केस के हवाले से। इसी तरह जब हम देखते हैं
जो सेक्शन 9(8) है इसका, इफ एन अक्यूज्ड pleads guilty or as the case may be, at the time prosecutors sum up the case, the prosecutor shall propose the magistrate or the court the punishment which in his opinion the accused should be awarded. तो जब एक प्रोसिक्यूटर अपना केस सम अप करता है तो वो जो सेक्शन 9(8) कहता है कि वो जो कोर्ट को है वो प्रपोज करेगा अक्सर इसको इन ऑफेंसेस पे ये पनिशमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा जो है 9(7) में ही थोड़ा सा 9(7) पे और बात कर लें कि 9(7) में ही जो है वो अगर प्रोसिक्यूटर ये समझता है अपने असेसमेंट फॉर्म में कि अगर इसके खिलाफ केस नहीं बनता किसी मुलजम के खिलाफ, तो वो उसको अपने असेसमेंट में बता सकता है कि इस मुलजम के खिलाफ जो है वो एविडेंस कम है। अगर प्रोसिक्यूटर केस को देखकर उसके ओपिनियन में ये है कि ये जो है जो एविडेंस है इस पे कन्विक्शन नहीं हो सकती, तो वो उसको जो अवेलेबल एविडेंस है रिकॉर्ड पे उस पे कन्विक्शन नहीं हो सकती, तो वो जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि इस मुलजम के खिलाफ जिसके खिलाफ एविडेंस पूरी नहीं है तो उसका जो है वो चार्ज भी फ्रेम ना किया जाए। तो 9(7) बहुत अहमियत की हामिल है इस प्रोसिक्यूशन एक्ट में और प्रोसिक्यूटर्स की पावर्स में, फंक्शंस में। जी, अब कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूटर के बाद है पावर्स ऑफ प्रोसिक्यूटर। तो इसका जो सब सेक्शन 1 है उसमें ये है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो किसी भी प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो एक इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरल गाइडेंस जो है वो इशू कर सकता है ताकि एक इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो, एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन हो। उसके बाद जो है प्रोसिक्यूटर जनरल या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अथॉरिटी रखते हैं कि वो अगर किसी ने भी ऐसा कोई एक्ट किया हो जो प्रोसिक्यूशन के लिए नुकसानदेह हो या प्रेजुडिशियली टू प्रोसिक्यूशन हो, तो वो उनके जो हाई अप्स हैं उनको जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उनके खिलाफ लिख सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल भी लिख सकता है और जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी लिख सकता है। और अगर कोई इनके अलावा प्रोसिक्यूटर है तो वो लिखना चाहे तो वो भी लिखेगा, लेकिन जो है प्रॉपर चैनल यही है कि वो अगर हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं या प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए भेजेंगे, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए भेजेंगे। सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3 है, ए प्रोसिक्यूटर में एक्सरसाइज आर एनी पावर्स मेंशन इन सेक्शन 9। जो पीछे पावर्स हैं वो सारे प्रोसिक्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बी है, कॉल फॉर अ रिपोर्ट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम एनी ऑफिसर ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी इन रिलेशन टू एन इन्वेस्टिगेशन। तो वो कोई भी जो है वो जो बी है उसमें कोई प्रोसिक्यूटर जो है वो कोई भी जो है रिपोर्ट मंगवा सकता है, कॉल कर सकता है किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी से जिसका तल्लुक इन्वेस्टिगेशन से हो। तीसरा है, कॉल फॉर रिकॉर्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इफ नेसेसरी फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन। तीसरी ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी मंगवा सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी, या अगर ये भी जरूरी है तो किसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की किसी और डिपार्टमेंट से भी वो कोई रिपोर्ट मंगवा सकता है जिसका किसी केस में प्रोसिक्यूशन में बहुत ज़रूरी हो या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंसाफ मुहैया करने के लिए उस रिपोर्ट का ज़रूरी हो, तो वो वहाँ से भी रिकॉर्ड मंगवा सकता है, रिपोर्ट मंगवा सकता है। अब आगे सब सेक्शन 3 का डी है, परफॉर्म सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइज सच पावर्स एज मे बी इंटरेस्टेड टू हिम अंडर द कोड और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और वो सारी वो पावर्स जो हैं उसको कोड के अंडर जो मिली हुई हैं या इस प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत मिली हुई हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। ये ई जो है वो आगे है, विद द कंसेंट ऑफ अ कोर्ट जो प्रोसिक्यूटर है वो विदड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी person either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is being tried after obtaining prior approval। तो जी प्रोसिक्यूटर के पास ये भी पावर है, अभी तक तो इस्तेमाल नहीं हो रही विड्रॉवल की, कि अगर प्रोसिक्यूटर समझता है इसमें कुछ खामी आ गई है केस नहीं चला सकता तो वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। तो विड्रॉवल के लिए जो है वो उसको अप्रूवल किस किस से लेनी पड़ती है एक प्रोसिक्यूटर को, तो ये देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेयर डिफेंस इज पनिशेबल अप टू 3 years। अगर एक ऑफेंस है कि किसी प्रोसिक्यूटर की कोर्ट में चल रहा है उसकी सजा 3 साल है, तो अगर वो ये समझता है कि ये केस विड्रॉ कर लेना चाहिए, ये एक्विटर का बायस बनेगा,
इसमें एविडेंस नहीं है तो वो उसकी जो अप्रूवल है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगा। अगर कोई ऐसा केस है जिसकी सजा 7 साल तक है, उसकी जो अप्रूवल है वो प्रोसिक्यूटर जनरल देगा। और अगर 7 साल से ऊपर जो है वो, तो उसकी जो है अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट देगा। बाकी सारे केस में जो है वो अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट देगी। आगे ये है, एट एनी स्टेज ऑफ अ ट्रायल बिफोर एनी ट्रायल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट बिफोर द judgment is passed, the prosecutor general or any prosecutor specifically authorized by him may, for reason to be recorded in writing, inform the court on behalf of the government that the prosecutor shall not prosecute the accused upon the charge, and thereupon all proceedings against the accused shall be stayed, and he shall be discharged of and from the same. तो जी इसमें ये है कि ये भी प्रोसिक्यूटर की पावर है कि अगर कोई प्रोसिक्यूटर जो है वो जजमेंट पास, जो हाई कोर्ट के अलावा जो कोर्ट्स हैं, अगर वो समझता है जजमेंट पास होने से पहले प्रोसिक्यूटर जनरल और एनी प्रोसिक्यूटर जो जिसको ऑथराइज किया गया है कि जी ये जो है केस जो है वो कोर्ट को इन राइटिंग कह सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि जी इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो स्टे कर दी जाए, या और इस जो मुलजम है इसको फलां ऑफेंस में जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाए, या दोनों वो कह सकता है। आगे इसकी प्रोवाइजो है इस पे, provided that such discharge shall not amount to an acquittal unless the court directs otherwise। तो वो ये कहता है कि ये जो डिस्चार्ज है ये एक्वेटर के बराबर नहीं होगा, जहाँ पे जो है इन राइटिंग जो है कुछ प्रोसिक्यूटर जो है वो कह रहा है कि जी इसका स्टे किया जाए या इसको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन इसको जो है वो एक्वेटर नहीं समझा जाएगा। जी सेक्शन जो 11 है वो कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन बिफोर सुपीरियर कोर्ट्स है। इसमें जो सेक्शन इसका 1 है वो है, without prejudice to the powers conferred under any law on the office of Attorney General of Pakistan and the Advocate General, the Prosecutor General and Additional Prosecutor may depute any prosecutor otherwise qualified for conducting prosecution before the Supreme Court, High Court and Federal Shariat Court। इसका मतलब ये है कि जो उनकी पावर्स एडवोकेट जनरल ऑफिस की और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उनकी पावर्स को छेड़छाड़ ना करते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो प्रोसिक्यूटर को डिप्यूट कर सकता है और करेगा, ताकि केसेस की जो है वो प्रोसिक्यूशन की जाए। सेक्शन 2 है जो है वो, द प्रोसिक्यूटर शैल कीप लाइजन विद द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड एडवोकेट जनरल इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स पेंडिंग इन एनी सच कोर्ट। तो जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो लाइजन रखेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ और एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब के साथ, ऑफिस के साथ, केसेस के मतलब जो किसी कोर्ट में भी पेंडिंग है, क्रिमिनल केसेस जो है किसी कोर्ट में पेंडिंग है उनके लिए उनके साथ लाइजन रखेगा और उनको साथ लेकर चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं पुलिस की कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारीज हैं प्रोसिक्यूटर की तरफ क्या हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस टुवर्ड्स प्रोसिक्यूटर्स, तो पहला ये कि एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शेल immediately report to the district public prosecutor registration of each criminal case by sending a copy of the first information report। इसका मतलब ये कि एसएच जो है वो जैसे ही कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर करेगा तो उसकी एक कॉपी फौरन जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा। उसके बाद जो बी है, जो जिम्मेदारी है पुलिस वालों की, सेंड द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू द कंसर्न प्रोसिक्यूटर विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय लॉ। तो वो जो 173 की रिपोर्ट है वो जो पीरियड लॉ ने डिसाइड किया हुआ है उसके मुताबिक जो है वो कंसर्न प्रोसिक्यूटर जो होगा उसको स्क्रूटनी के लिए भेजेगा, उसको जो है वो स्क्रूटनी के लिए भेजेगा और उसको कोर्ट में सबमिशन के लिए भेजेगा। आगे जो सी है, इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड और कैन नॉट बी completed with the time period provided under the law, record reasons for delay and inform the prosecutor। अगर वो ये समझता है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझता है कि वो उससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही या जो टाइम लॉ ने दिया है उसमें कंप्लीट नहीं हो सकती, तो वो अपनी जो रीजन है वो डिले की कंसर्न प्रोसिक्यूटर को जो है वो बताएगा, उसको कन्वे करेगा। सब सेक्शन 2 है,
An officer in charge of police station or investigation officer shall, within the time specified by the prosecutor, complied with the directions and remedy the defects pointed out by the prosecutor in a police report under Section 173 of the Code, including a report for cancellation, information report, a request of discharge of an accused or suspect. इसमें सेक्शन जो सब सेक्शन 2 है उसमें ये है कि जो एसएचओ है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जो है प्रोसिक्यूटर जो टाइम स्पेसिफाइड करता है उसके अंदर अंदर उसकी जो डिफेक्ट हैं जो 95 सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में वो उठाता है एविडेंस को ठीक करने के लिए करेक्ट करने के लिए जो डिफेक्ट उठाता है तो वो जो प्रोसिक्यूटर है जो पीरियड डिसाइड करेगा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसका प्रबंध होगा कि उसके अंदर अंदर जो है वो जो है जो डिफेक्ट है वो दूर करके दोबारा प्रोसिक्यूटर साहब को जो है वो रिपोर्ट पेश करेगा चाहे वो 173 की रिपोर्ट हो कैंसलेशन रिपोर्ट हो जो 173 में ही आती है या कोई डिस्चार्ज रिक्वेस्ट हो किसी अक्यूज की तो वो जो है वो उस पर अगर कोई डिफेक्ट हो तो वो कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर ही जो रिमूव करके लाएगा और उसकी जो प्रोसिक्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन है उसके साथ कंप्लाई विद करेगा। जी ये कुछ ड्यूटीज हैं प्रोसिक्यूटर्स की तो देखते हैं कि किसकी क्या क्या ड्यूटी है। तो द प्रोसिक्यूटर जनरल shall submit annual report of the service to the government within 3 months of the conclusion of the calendar years to which the reports pertains। तो इसमें ये पहला ये है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो 3 महीनों के अंदर अंदर जो पहले 3 महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च उसमें जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो अपनी सबमिट करेगा गवर्नमेंट को अपने महकमे की परफॉर्मेंस के मुताबिक। Provided that the government shall lay the report before the provincial assembly within 2 months of its receipt and keep the government informed about the performance of the service। और ये जो गवर्नमेंट है वो 2 महीनों के अंदर अंदर प्रोविंशियल असेंबली में वो रिपोर्ट सबमिट करेगी और गवर्नमेंट को जो है वो इसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक इन्फॉर्म रखेगी। आगे दो है जी सब सेक्शन 2 है 13 का ए प्रोसिक्यूटर वर्किंग अंडर द direction of the Prosecutor General shall keep the Prosecutor General informed about the progress of all the cases under his charge। जो प्रोसिक्यूटर है जो प्रोसिक्यूटर जनरल के सुपरविजन में काम कर रहा है वो प्रोसिक्यूटर जनरल को हर केस के मुताबिक उसकी प्रोग्रेस बताएगा। Mr. Public Prosecutor shall keep the Prosecutor General informed about the progress of all criminal cases in the district। अब जी जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो प्रोसिक्यूटर जनरल को जो है वो उसके जो जिले में जितने भी क्रिमिनल केस हैं वो उनकी जो प्रोग्रेस है वो उसको बताएगा। A prosecutor working under the supervision and control of district public prosecutor shall keep the concerned district public prosecutor informed about the progress of all criminal cases under his charge। तो जी जो डिस्ट्रिक्ट में प्रोसिक्यूटर काम कर रहे हैं वो सारे क्रिमिनल केसेस जो उसकी अदालत में होंगे उसके चार्ज में होंगे वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो अपने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताएगा। Where a prosecutor is of opinion that an application for enhancement of sentence or a revision should be filed in any case, he shall refer the matter to the district public prosecutor or the prosecutor general, who shall take appropriate measures thereon under the law। अगर कोई प्रोसिक्यूटर ये समझता है कि किसी ऑफेंस में सजा कम हुई है तो उसकी सेंटेंस एनहांस करने के लिए या रिवीजन फाइल करनी है तो वो जो है मैटर जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या प्रोसिक्यूटर जनरल को वो रेफर कर देगा जो लॉ के मुताबिक जो है वो उसको आगे उसको प्रोसीड करेंगे कि इसकी जो इन्हांसमेंट है किसी सजा की या रिवीजन जो दायर करनी है वो कैसे करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो उनको फाइल भी करेंगे। तो अमूमन यही होता है कि जब कोई रिवीजन फाइल करनी हो या इन्हांसमेंट करनी हो अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी है तो वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट अपील कमेटी है वो उसका जायजा लेगी उसको फिट करेगी इन्हांसमेंट के लिए रिवीजन को तो वो वहाँ पे हो जाएगी। अगर हाई कोर्ट में होनी है तो फिर वो सारे जो कॉपीज हैं ऑर्डर्स हैं उसकी एक पिटीशन सी बन के वो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस आ जाती है तो यहाँ पे जो है वो इनकी एक प्रोविंशियल अपील कमेटी है और एक हाई कोर्ट अपील कमेटी है तो वहाँ पे वो डिसीजन होता है कि क्या इसकी इन्हांसमेंट करनी है या नहीं करनी। तो उसके मुताबिक जो है वो केस को जो वो आगे वो लेके चलते हैं उसकी इन्हांसमेंट को और उसकी रिवीजन दायर करने के लिए। इसके बाद जो ड्यूटीज में जो
सेक्शन 13(6) है, उसमें ये है कि इन केस ऑफ acquittal by court in a district, the concerned district prosecutor and a special court, the concerned prosecutor shall report the details of a case to the prosecutor general along with the grounds for appeal, and the prosecutor general may request the government for preferring an appeal. अगर कोई केस एक्विट हो गया है और उसमें समझता है प्रोसिक्यूटर तो कि इसमें अपील होनी चाहिए, तो जो अगर जिले में केस हुआ है, एक्विट हुआ है, तो जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो, और अगर किसी स्पेशल कोर्ट में हुआ है तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर है वो जो है वो एक जो अपील है वो रेफर करेगा प्रोसिक्यूटर जनरल को तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ और ग्राउंड के साथ, और जो भेजेगा, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब होंगे वो रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि इसकी इजाज़त दी जाए इस अपील को फाइल करने के लिए। आगे साथ जो है ड्यूटीज में सबसेक्शन ए प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन एन इंडिपेंडेंट फाइल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ ईच केस असाइन टू हिम फॉर प्रोसिक्यूशन। तो जो प्रोसिक्यूटर है उसके पास जितने केस उसकी अदालत में, उसकी जो है वो एक अलहदा इंडिपेंडेंट फाइल जो है वो मेंटेन करेगा। 8 है a district public prosecutor shall act as a member of criminal justice coordination committee established under article 110 of the order। तो जो पुलिस ऑर्डर है उसका आर्टिकल 110 के तहत एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मीटिंग होती है जिसको सेशन जज साहब चेयर करते हैं, तो वो उसका एक जो है वो मेंबर होगा और उस कमेटी को जो है वो कमेटी में पार्टिसिपेट करेगा, और जो उसके व्यूज हैं या केसेस के मतलब कोई डेफिशिएंसीज हैं या डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं पेंडिंग ट्रायल, पेंडिंग चलान, अक्विटल, कन्विक्शन, तो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो डिस्कस होती हैं। जी आगे जो सेक्शन 13 का 9 है जो ड्यूटीज में है, तो इसमें ये है प्रोसिक्यूटर शैल इन ऑल मैटर्स परफॉर्म हिज फंक्शन एंड एक्सरसाइज हिज पावर्स फेयरली honestly with due diligence in the public interest and to uphold justice। तो ये प्रोसिक्यूटर की ये भी ड्यूटी है कि वो अच्छे ऐसे अंदाज से और इंसाफ का बोल बाला करने के लिए काम करे। आगे बी जो है 9B जो है on receipt of police report final or interim including report of cancellation of first information report or request of discharge of an accused, scrutinize the same and process it under section 9। तो कोई भी अगर जो बी है ड्यूटी है प्रोसिक्यूटर की, कोई भी रिपोर्ट उसको 173 में रिसीव होती है तो उसको स्क्रूटनाइज करें, मेक सच एंट्रीज इन द रिकॉर्ड एंड रजिस्टर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसकी जो एंट्री है वो रजिस्टर में करे और रिकॉर्ड में करे। एंड डी जो है report to the district public prosecutor details of investigation if any conduct in violation of law and instruction issued by the prosecutor general are not completed in the time provided under the law without reasonable cause, and this prosecutor may inform the head of investigation and the prosecutor general for appropriate action। And E जो है perform such other duties as may be assigned to him under this act by the government or by the prosecutor general। और इसके इन ड्यूटीज के अलावा वो भी ड्यूटियां भी करेगा जो उसको इस एक्ट में या प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उसको असाइन करेगा। जी ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी है। द गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश अ क्रिमिनल प्रोसेस सर्विस सर्विंग एजेंसी टू परफॉर्म सच प्रोसेस सर्विंग फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। The criteria for appointment and terms and condition of service of the members of criminal process serving agency shall be such as may be prescribed। तो ये एक एजेंसी इस्टेब्लिश होनी थी जिसमें ये जो समन जाते हैं वारंट जाते हैं प्रोसिक्यूशन में कि ये कैसे समन और विटनेस को कॉल करनी है, अक्यूज को कॉल करनी है, तो ये एक एजेंसी इस्टेब्लिश होनी थी जो अभी तक नहीं हो सकी। तो ये जो अभी तक सेक्शन 14 है ये इनएक्टिव है फिलहाल, तो इसमें जो है इसकी अभी तक कोई जो है इन्फोर्समेंट नहीं है और ना इसका अभी तक कोई काम हुआ है। चैप्टर 5 है मिसलिनियस, तो इसमें जो है पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। द गवर्नमेंट में by notification make rules for carrying out the purpose of this act। The Prosecutor General may, subject to rules and with the prior approval of the government, frame regulations for giving effect to the provision of this act। Terms and conditions of service, subject to the provision of this act and the rules,
Members of the service, including the staff, shall be appointed and worked under the Punjab Civil Servant Act 1974 and rules made under thereunder. Code of Conduct. The Prosecutor General shall, with the prior approval of Government, shall issue a code of conduct for the prosecutors. तो जी ये प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये इशू कर दिया है सेक्शन 17 के तहत, और इसकी जो कॉपी है वो प्रोसिक्यूटर जनरल की वेबसाइट पे है। और इस कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि एक जो प्रोसिक्यूटर है वो कैसे कंडक्ट करेगा, कैसे केसेस में कंडक्ट करेगा, कैसे प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेगा, पोस्ट ट्रायल करेगा और ड्यूरिंग ट्रायल करेगा। A prosecutor shall perform functions under this act in accordance with the code of conduct issued under section 1। और प्रोसिक्यूटर जो है वो उस जो कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करेगा, उसके मुताबिक जो अपनी ड्यूटी जो है वो जो ड्यूटीज हैं वो करेगा। जी इसमें जो सेक्शन 8 है वो है इंटिमिटी। No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the prosecutor in respect of anything done or attempt to be done by him in good faith under this act। दूसरा जी prosecutor appointed under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Pakistan Penal Code। तो जी जो सेक्शन 21 है पाकिस्तान पेनल कोड का, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है कि कौन कौन सा जो है पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, तो प्रोसिक्यूटर भी उसकी डेफिनेशन में फॉल करता है। रिमूवर ऑफ डिफिकल्टीज है, द गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर द रिमूवर ऑफ एनी डिफिकल्टी विच मे अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट जो है वो इस कोई भी अगर डिफिकल्टी है तो उसको रिमूव कर सकती है। आगे उसका जो सेक्शन 20 है, Act to override other laws. Section 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 and 19 of this Act shall override all other laws, while other section of this Act shall be read in conjunction with other laws। तो ये जो section लिखे गए हैं ये override करते हैं बाकी सब laws को। Saving says all points made, action taken and notification issued by the government before the commencement of this Act with respect to prosecution of criminal cases shall be deemed to have been taken and issued under this act। तो ये जो पीछे एक्ट कोई भी नोटिफिकेशन हो चुके हैं क्रिमिनल केसेस के हवाले से, तो ये उसको प्रोटेक्शन है वो ऐसे समझे जाएंगे जैसे कि इस एक्ट के तहत नोटिफिकेशन हुए हैं। तो ये था जो प्रोसिक्यूशन एक्ट था जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है वो चल रही है पंजाब में। इसके अलावा और भी प्रोसिक्यूशन एक्ट में बहुत सी चीज़ें हैं जो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में या किसी और लेक्चर में पढ़ाई भी जाएंगी, समझाई भी जाएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा एक ब्रीफ सा जो प्रोसिक्यूशन एक डिपार्टमेंट है और प्रोसिक्यूशन के ड्यूटीज क्या हैं, पावर्स क्या हैं, वो किस तरह रन करता है, तो ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ सा जो था उसका इंट्रोडक्शन था, उस एक्ट जो है कैसे काम करता है और एक्ट है क्या चीज़। तो आई होप इसको नेक्स्ट मजीद देखेंगे, इसकी फर्दर जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।